Greetings students. In the previous module, we discussed about how a current carrying conductor move in a particular direction when an external magnetic field is applied. वो किस तरह मूव करने वाला है जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे. So next is how we can find out the direction of force, कि वो किस तरफ मूव करने वाला है या जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर वायर के ऊपर वो किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है. So how we can find out the direction of force on a current carrying conductor inside a magnetic field. ये current carrying मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो किस तरह मूव करने वाला है या उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, दैट वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. So Fleming left hand rule is also called motor rule because this rule applies on the electric motor. So one question that comes in the board exam is they will give you a statement. In that statement they will ask you how we can find out the direction of force on a current carrying conductor in a magnetic field. So in that type of answer you only have to write one line or these four words, Fleming left hand rule. So significance or use of this Fleming left hand rule is to find out the direction of force and motion acting on a current carrying conductor in a magnetic field. So first we will discuss what is this Fleming left hand rule or motor rule. So how we can find out the direction of force? In that particular kicking wire experiment, what we were doing, we are applying the current. करंट कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं. करंट की डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, हम डिसाइड कर रहे हैं. वी नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट बिकॉज वी आर पासिंग द करंट थ्रू दैट पर्टिकुलर कंडक्टर. कि कंडक्टर में से करंट कौन पास कर रहा है, हम कर रहे हैं. तो हमारी मर्जी है कि हम किस डायरेक्शन में उसमें से करंट पास करें, फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए. क्लियर टू एवरीवन. मैग्नेट जो है उसके चारों तरफ यू शेप मैग्नेट हमने रखी थी, दैट वी आर यूजिंग. So by this we can also find out the direction of magnetic field around that current carrying conductor. What we need, what we want to know from this Fleming left hand rule, we want to find out the direction in which that particular conductor will move. कि किस direction में वो आगे आएगा, पीछे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा. That we can find out by using the Fleming left hand rule. The method to use Fleming left hand rule is take your left hand, stretch the thumb, the forefinger or first finger or central finger in such a manner they should be mutually perpendicular to each other. कि like this pattern, कि left hand लेना है आपको, thumb, first finger and the second finger, they are called thumb, forefinger and the central finger. They should be stretched in such a manner कि वो तीनों क्या हों, एक दूसरे के perpendicular हो, 90-90. So that's how you have to stretch your fingers. I hope this is clearly visible to everyone कि how to stretch your fingers. Left hand, thumb, first finger and the central finger or forefinger, they should be stretched in such a manner कि वो तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के perpendicular होने चाहिए. I hope this is clear to everyone कि कैसे fingers को stretch करना है. After stretching your fingers, let's assume this is the metal wire or conductor through which current is flowing and the direction of current from this end to that end. So how to find out the direction of force? In this, when you stretch these three thumb, forefinger and central finger in such a manner that they are mutually perpendicular to each other, what they are representing, this middle finger or central finger should be pointed towards the direction of current. ये जो सेंट्रल फिंगर है इसको हमको किसकी तरफ पॉइंट करना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट हम खुद फ्लो कर रहे हैं. एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. तो करंट हमने देना है तो हमको पता है कि हम किस डायरेक्शन में करंट पास कर रहे हैं. तो यू हैव टू पॉइंट योर मिडल फिंगर और सेंट्रल फिंगर टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. सिर्फ आपको इस फिंगर को जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसकी तरफ आपको प्लेस करना है. उसके प्लेस करते ही आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आपने बाहर से लगाई है और जो फोर्स और मोशन है जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव करने वाला है वो आपको पता चल जाएगा. सो वी विल डू दिस बाय एक्सपेरिमेंट. लेट अज्यूम दिस इज अवर कंडक्टर और इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट. सो स्ट्रेच योर फिंगर, द सेंट्रल फिंगर और मिडल फिंगर शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट. लेट अज्यूम आई हैव पॉइंटेड द मिडल सेंट्रल फिंगर टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो मैंने इसको इसकी तरफ पॉइंट कर दिया. अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा,
थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि हमने करंट को इस तरफ प्लेस कर दिया है, ये फिंगर जो फिंगर है किस चीज को पॉइंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो आई हैव अरेंज इन सच ए मैनर कि माय मिडल फिंगर और सेंट्रल फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ जा रही है, और ये जो पीछे की तरफ मेरी सामने की तरफ फिंगर जा रही है वो किसकी तरफ रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड दिस थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो एज यू कैन ऑल्सो सी, अब मैं आपके सामने आ गया हूँ बिल्कुल, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो अब ये मैंने कर दिया. अब when you see it, the direction of motion should be in upward direction, और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो किसकी तरफ है, टुवर्ड्स यू पीपल. तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, मोशन कहाँ है, ऊपर की तरफ है, और मिडल फिंगर किस तरफ है, मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ है. सो इफ इन एग्जाम एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, so how to write Fleming left hand rule, stretch your thumb, first finger and the central finger of left hand in such a manner they are mutually perpendicular to each other. Now if the first finger is point in the direction of magnetic field, central finger point in the direction of current, in that case the thumb will point toward the direction of force on the conductor, कि जो कंडक्टर उस पर कितना फोर्स लग रहा है या किस डायरेक्शन में वो क्या करने वाला है, मूव करने वाला है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर. सो दिस इज द Fleming left hand rule. So I hope this is clear to everyone कि what you have to do, stretch thumb, forefinger and the middle finger or central finger so that they are mutually perpendicular to each other. This finger represents the current, that finger represents the magnetic field, and the thumb will point towards the direction of motion or force. कि thumb क्या बताएगा, डायरेक्शन किसकी, फोर्स या मोशन की. मिडल फिंगर क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट हम खुद पास करते हैं तो हमको पता होता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम अपने मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रख देते हैं, और उससे क्या पता चल जाता है हमको, डायरेक्शन ऑफ मोशन की, वो किस तरह मूव करने वाला है हमारा कंडक्टर. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल I have written a question that is the part of your NCERT textbook. You can find this question in NCERT in text in the form of MCQ. So what is given here? A positive charge particle, alpha particle or positive charge particle is projected toward the west. कि अल्फा पार्टिकल हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं. is deflected toward the north. अब वो किधर जा रहे थे, वेस्ट की तरफ जा रहे थे, और डिफ्लेक्ट होके किधर चले गए. I have drawn a simple diagram, north, south, east, west. So you can draw this direction. So positive charge particle is moving toward the वेस्ट डायरेक्शन, कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेस्ट साइड में जा रहे हैं. जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो किस डायरेक्शन में चले जाते हैं, कि मान लो ये अल्फा पार्टिकल थे, वो किस डायरेक्शन में चले गए, टुवर्ड द नॉर्थ. कि डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड, कि जो डायरेक्शन है फोर्स की वो क्या है, नॉर्थ की तरफ है, एंड दे आर आस्किंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो आई विल एक्सप्लेन यू. लुक एट दिस डायग्राम. Clear to everyone? So what is happening here? North, south, east, west. They are saying the positive charge alpha particle are flowing toward the west. We have to find out the direction of magnetic field. That we can find out by using the Fleming left hand rule. So I am taking my left hand, stretching my finger, thumb, forefinger and the middle finger. अब मुझे क्या करना है, मिडल फिंगर पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट. What they are saying, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड व्हाट इज करंट, द मोशन और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. तो उसने हमको डायरेक्टली नहीं बताया कि करंट की डायरेक्शन क्या है, बट दे हैव गिवन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं. तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आई हैव ऑलरेडी स्ट्रेच्ड माय फिंगर, द मिडल फिंगर पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो आई एम पॉइंटिंग माय मिडल फिंगर टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो हाउ डिड आई गेट दैट कि करंट की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट की तरफ है, क्योंकि वो बोल रहा है हमको कि पॉजिटिव पार्टिकल किधर जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं. तो आई एम पॉइंटिंग माय सेंट्रल फिंगर टुवर्ड द वेस्ट. तो ये देख सकते हो आप, ये वेस्ट इधर है, ये मेरी फिंगर किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, वेस्ट की तरफ. नाउ थंब विल पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नॉर्थ. तो आप देख सकते हो कि करंट की डायरेक्शन अगर वेस्ट की तरफ है तो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ, मींस नॉर्थ की तरफ.
और उसने हमको बताया भी है कि वो किसकी तरफ, जो पार्टिकल पहले वेस्ट में जा रहे थे अब किसकी तरफ जाने लग गए, नॉर्थ की तरफ। तो मोशन की डायरेक्शन हमको क्वेश्चन में ही दे रखी है कि वो किसकी तरफ है, टुवर्ड द नॉर्थ, ऊपर की तरफ। एज यू कैन सी कि मैंने अपनी मिडिल फिंगर को किधर पॉइंट किया, वेस्ट की तरफ, और थंब किसकी तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, मीन्स नॉर्थ की तरफ। तो पार्टिकल अब किधर जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इफ यू आर सीइंग, तो वो किसकी तरफ है, टुवर्ड्स यू। लेकिन जब हम पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे इसको आंसर शीट के ऊपर, तो क्या होगा, मान लो अब इसको मैं बिल्कुल सीधा कर देता हूँ। तो अभी मेरा क्या था, पहले मेरा क्या था, वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो अब मैंने बिल्कुल ऊपर कर दिया, तो क्या हो गया, एज यू कैन सी हियर। तो करंट की डायरेक्शन तो अभी वही है, थंब की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। इन द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड टुवर्ड्स अपवर्ड, तो ऊपर की तरफ जा रही है। तो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू गिव द आंसर इफ द in the given option if it is given towards the observer। तो ऑब्जर्वर मतलब जो सामने से देखने वाले, तो आप सामने से देखने वाले हो तो किसकी तरफ है, आपकी तरफ। तो आंसर कैन ऑल्सो बी लाइक दिस, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, बट इन द ऑप्शंस यू विल फाइंड अपवर्ड। तो आप ऊपर पेपर पे बनाओगे, पेपर पे बनाने के बाद जब आप उसको देखोगे तो आपको वो किसकी तरफ दिखाई देगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर, फोर्थ थंब, एंड दिस फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वो डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, कहाँ है, ऊपर की तरफ है, टुवर्ड अपवर्ड। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। सो दैट्स हाउ दे कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम। तो इस तरह से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू और इवन इन द 1 मार्क क्वेश्चन। सो ट्राई टू फाइंड आउट the questions based upon this Fleming left hand rule. You can find these type of question in previous year question paper, in your one or two question is also there in the NCERT, or you can also find in the sample paper or even in your reference book. So practice this Fleming left hand rule, how we can find out the direction of magnetic field, force and current. At least they will give you the 2 parameters and will ask you about the third one. So I hope this Fleming left hand rule is clear to everyone. The most important question is what is the significance or use of Fleming left hand rule to find out the direction of force or motion acting on a current carrying conductor. So in exam, if they ask you Fleming left hand rule, more commonly they ask in the 2 marks. So first write this full, then draw this diagram. So I hope this is clear to everyone. Now you can take the screenshot and can write in the fair notebook. So that term that I have explained is already explained here. तो B का मतलब क्या है, वो ऊपर की तरफ आ रही है, और either this is the first diagram कि जब मैं उसकी तरफ पॉइंट कर रहा हूँ डायरेक्शन की तरफ, तो वो ऊपर की तरफ आ रहा है. This is the second one that I have already drawn here. So that's how you can explain or write the answer of this question. So now you can take the screenshot. If you still have any query related to the Fleming left hand, you can write in the comment section. Now take the screenshot and write in the fair notebook. Thank you, students.